بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب گناہوں کا راج تھا 1500 سال پہلے عرب کی سرزمین پر ظلم اور جہالت کا راج تھا۔ عورتوں کے ساتھ شدت بھرا ظلم ہوتا تھا، انہیں انسان تک نہ سمجھا جاتا۔ نئے پیدا ہونے والی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ امیر اور غریب کے بیچ گہری دیواریں کھڑی تھیں۔ شراب، بت پرستی اور خون خرابی عام تھا۔ نہ انصاف تھا، نہ امن، نہ عزت۔ انسانیت اپنے تاریک ترین دور میں تھی، ایک ایسی دنیا جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اور پھر آئی وہ شخصیت، ایک شخصیت جو بچپن سے ہی سب کے لیے الامین اور الصادق تھی، جن کی ایمانداری اور سچائی کی مثال دی جاتی تھی، مگر ان کے اندر چھپی ہوئی ایک عظیم طاقت تھی، ایک ایسا راز جو دنیا کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ اور پھر آیا وہ پہلا لمحہ جس نے نہ صرف ان کی زندگی بلکہ انسانیت کی روح تک ہلا دی۔ یہ کہانی ہے اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی آمد سے اندھیرے روشنی میں بدل گئے۔ آج ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے اللہ کے آخری رسول تھے، جن کو اللہ نے رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ قرآن کا پیغام ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو صرف اور صرف تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ان کی زندگی تو ہم سب کے لیے مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں ہدایت ہے۔ ان کی زندگی قیامت تک کے لیے امت کا رہنما ہے۔ چلیے ذرا اس زمانے کا سوچ کے دیکھیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عرب میں اس وقت ہر قبیلہ اپنے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ عرب لوگ قبیلائی نظام میں بٹے ہوئے تھے، جیسے بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو مخزوم۔ ہر کسی کا الگ مذہب، الگ دیوی دیوتا تھے، کوئی بتوں کی پوجا کرتا، کوئی آگ کی۔ یہودی اور عیسائی بھی تھے، لیکن ان کا دین بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ بدلے کی آگ میں قبیلے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، قتل و غارت عام تھا۔ معاشرے میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ جن کے وہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی ان کے گھر میں ماتم برپا ہو جاتا تھا۔ پورا دن اداسی اور مایوسی میں گزرتا تھا۔ والدین اپنے آپ کو بد نصیب سمجھتے تھے۔ عرب لوگ تو کاروبار میں کافی آگے تھے، لیکن ہر جگہ سود کا لینا دینا چلتا تھا۔ انسانیت کی کوئی قدر نہیں تھی۔ اور اسی ظلم اور جہالت کے دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تاکہ وہ لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آئیں اور انسانیت کو ایک نئی روشنی دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول 571 سی کو مکہ میں صبح صادق کے وقت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جو قریش کا ایک عظیم اور عزت دار خاندان تھا۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمینہ تھا۔ آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا اور والدہ نے احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بھی کچھ نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ آپ پہلے سے ہی ختانہ شدہ تھے اور آپ کی مٹھی بند تھی، لیکن شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ مانو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہو۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ 6 سال کی عمر میں حضرت آمینہ رضی اللہ کا انتقال ابوا کے مقام پر ہو گیا۔ آپ یتیم ہو گئے اور آپ کا بچپنا یتیمی میں گزرا، اور جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے ذمہ داری لی، لیکن 8 سال کی عمر میں وہ بھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ ایک ایسا واقعہ بھی پیش آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی ماں تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ۔ اس وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ شہری بچوں کو گاؤں بھیج دیا جاتا تھا، تاکہ وہ صاف ہوا، صاف بولی اور بہتر صحت کے ساتھ بڑے ہو سکیں۔ بنو سعد کا علاقہ مکہ سے کچھ دور طائف کے پاس تھا۔ یہیں پر بی بی حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہتی تھیں۔
उनका ताल्लुक बनु साद कबीले से था, इसलिए उन्हें सादिया कहते हैं। जब हलीमा रजी अल्लाह मक्का आई थी तो सबसे पहले वो किसी अमीर घर का बच्चा लेना चाहती थी ताकि कुछ पैसे भी मिल जाएं, मगर अल्लाह ने उनके नसीब में सबसे अजीम बच्चा लिखा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले तो हलीमा रजी अल्लाह ने सोचा ये बच्चा तो यतीम है, इसमें क्या बरकत होगी, मगर उनको कोई और बच्चा नहीं मिला तो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ले लिया। सुभान अल्लाह, जब से उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लिया, उनके घर में बरकत ही बरकत आ गई। उनकी सूखी ऊँटनी का दूध भर गया, उनका कमजोर गधा तेज भागने लगा और पूरे कबीले में लोग हैरान रह गए कि गरीबी का ये घर अचानक इतना बरकतों वाला कैसे बन गया। बीबी हलीमा रजी अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 साल तक दूध पिलाया और इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ गांव में ही रहे। 2 साल के बाद जब हलीमा रजी अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमिना रजी अल्लाह के पास वापस लेकर गईं, तो उनकी मां ने कहा, मेरे बेटे का चेहरा कुछ और ही रोशनी से चमक रहा है। फिर हलीमा रजी अल्लाह ने जिद करके फिर से उन्हें कुछ वक्त के लिए ले आई। हलीमा सादिया रजी अल्लाह की ममता, मोहब्बत और वफादारी की मिसाल रह गई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हमेशा इज्जत और मोहब्बत से याद करते थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हलीमा रजी अल्लाह को कैसी अजीम नेमत दी, दुनिया के रहनुमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध पिलाने का शरफ। तो दोस्तों, ये थी हलीमा सादिया रजी अल्लाह की पाक जिंदगी और उनके नसीब की बरकत भरी कहानी। इससे मुताल्लिक एक और वाक़या आता है, छाती चीरने वाला वाक़या। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक अहम वाक़या, शक्के सद्र यानी सीना चीरना, जिसे छाती चीरने वाला वाक़या भी कहा जाता है। सही मुस्लिम में हजरत अनस रजी अल्लाह से रिवायत है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकरीबन 4 या 5 साल के थे तो एक दिन अपने दूध भाइयों के साथ खेल रहे थे कि अचानक 2 फरिश्ते सफेद लिबास में आए। उन्होंने रसूल अल्लाह को पकड़कर जमीन पर लिटा दिया, आपका सीना चीरा और उसमें से एक काला सा टुकड़ा निकाला और कहा, यह शैतानी हिस्सा है। फिर उसे दूर फेंक दिया, उस जगह को जमजम के पानी से धोया, सीना दोबारा जोड़ दिया और आपके दिल को रूहानी तौर पर पाक कर दिया गया। आपके दूध भाई ये मंजर देखकर घबरा गए और दौड़कर हलीमा सादिया रजी अल्लाह के पास जाकर चीख कर बोले, मोहम्मद तो किसी ने मार दिया। जब हलीमा ने देखा कि रसूल अल्लाह का रंग जर्द है और आप घबराए हुए हैं तो उनका दिल कांप गया। ये असरारी वाकया देखकर वो बहुत परेशान हो गईं और डर के मारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन मक्का लाकर उनकी असली मां हजरत आमिना रजी अल्लाह के हवाले कर दिया। ये वाकया, जिसे शक्के सद्र कहते हैं, अल्लाह की तरफ से आपकी जिंदगी को पाक बनाने और उन्हें रिसालत के लिए तैयार करने का निशान था। उनमें से तो एक तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, वही फरिश्ता जो बाद में भी रसूल अल्लाह के पास वही लेकर आते थे, और उनके साथ एक फरिश्ता भी था। और दोस्तों, इस वाक़े का इशारा कुरान में भी है। सूरा इंशिराह आयत नंबर 1, अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने तुम्हारा सीना नहीं खोला। उलमा के मुताबिक इसका मतलब ये भी है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को रूहानी तौर पर पाक किया और उनका सीना नूर, सब्र और हिदायत से फराख बनाया। और हिदायत से फराख बनाया, ये सब इसलिए किया गया ताकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत के लिए तैयार हो जाए और उनका दिल सिर्फ अल्लाह की रहमत और सच्चाई का मरकज बन जाए। और ये तो सिर्फ आगाज था। एक बार उनके चचा अबू तालिब ने भी उन्हें 12 साल की उम्र में एक सफर पर ले गए थे और वो सफर था शाम की तरफ। एक शहर में गए जिसका नाम था बुसरा, जो आज के साउथ सीरिया में है। ये सफर भी रसूलुल्लाह की जिंदगी का एक अहम मोड़ था, जहां कुछ लोगों ने उन्हें देखा जो पहचान गए कि ये लड़का कुछ खास है। सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह के हर कदम में अल्लाह का इंतजाम नजर आता है। एक और वाकया सामने आता है, मॉन्क बहीरा से मुलाकात का वाकया। बुसरा में एक क्रिश्चियन मॉन्क यानी राहिब रहता था जिसका नाम था बहीरा। जब उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसने कुछ अजीबो गरीब निशानियां महसूस की। निशाने नबूवत दिखी कि एक बादल उनके ऊपर साया करता था धूप से। जब वो पेड़ के नीचे बैठे तो शाखें झुक गईं उन्हें छांव देने के लिए। उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पर मोहर नबूवत भी देखी, यानी हजरत हूद का निशान। बहीरा ने हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह से कहा, सुनो, ये लड़का आम बच्चा नहीं है।
मैं उन निशानियों को इसमें देख रहा हूं जो हमारी किताबों में आखिरी पैगंबर के लिए लिखी गई है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूं, इस लड़के को सीरिया के अंदर मत ले जाओ। वहां कुछ लोग उसे पहचान सकते हैं और अगर पहचान गए तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। नतीजा यह हुआ कि हजरत अबू तालिब ने फौरन कुछ लोगों के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस भेज दिया ताकि उनकी हिफाजत हो सके। यह वाकया भी सामने आता है कि जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह मक्का की एक इज्जतदार और अमीर तिजारत करने वाली खातून थी, वो लोगों को पैसा देकर अपना सामान बेचने के लिए भेजती थी। उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और सच्चाई के बारे में सुना था, इसलिए उन्होंने आपको अपने तिजारती सफर के लिए चुन लिया। सफर का वाकया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रजी अल्लाह के माल के साथ शाम गए। उनके साथ उनके नौकर मैसरा भी गया था। सफर के दौरान मैसरा ने देखा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे, मुनाफा कामयाबी से कमाते थे, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलते थे। एक बादल उनके ऊपर साया करता। एक और क्रिश्चियन राहिब ने भी पैगंबरी की निशानी देखी और ताज्जुब किया। नफीसा हजरत खदीजा अलैहिस्सलाम के रजाकार ने कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खदीजा बिन्त खुवैलिद आपके इखलाक, दयानतदारी और ईमानदारी से बहुत मुतासिर हैं। अगर आप पसंद फरमाएं तो वो चाहती हैं कि आप दोनों का निकाह हो जाए। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह एक इज्जत और शरफ की बात है। मैं इस फैसले के लिए अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करना चाहूंगा। फिर प्यारे नबी ने अपने चचा से कहा, चचा जान, हजरत खदीजा रजी अल्लाह का पैगाम आया है, वो निकाह का इजहार कर रही हैं। हजरत अबू तालिब ने कहा, भतीजे, खदीजा कुरैश की सबसे समझदार, इज्जतदार और नेक औरत है। यह रिश्ता बहुत मुबारक है। हम फौरन इस फैसले को अंजाम देते हैं। हजरत अबू तालिब निकाह के वक्त खुतबा किया, अल्लाह अकबर, हमारे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका इखलाक सब कुरैश में मिसाल है, आज खदीजा बिन्त खुवैलद से निकाह कर रहे हैं। महर 20 ऊंट मुकर्रर किया गया है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह यानी रुखसती के वक्त दिल में दुआ करती हैं, या अल्लाह, इस निकाह को बरकत अता फरमा। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर दुख सुख में साथ निभाऊंगी। यह निकाह एक अजीम बंधन था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा रजी अल्लाह की हयात में किसी और से शादी नहीं की। आपके सबसे ज्यादा औलाद भी इसी पाक रिश्ते से हुई। कासिम, जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम और अब्दुल्ला। सिर्फ हजरत इब्राहिम आपकी बात की बीवी हजरत मारिया किप्तिया रजी अल्लाह से पैदा हुए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा से एक दिन कहते हैं, खदीजा, तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया। जब लोग मुझे झुटलाते थे, तुमने तस्दीक की। तुम अल्लाह की सबसे अजीम नेमतों में से हो। यह था मोहब्बत, ईमान और वफा का रिश्ता, जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की सबसे आली औरत को अपनी जिंदगी में चुना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के हुए तो आपको तन्हाई पसंद होने लगी थी। आप अक्सर मक्का से कुछ दूर गारे हिरा में जाके घंटों दिनों तक अल्लाह की याद में मशगूल रहते। ये गार जबल नूर यानी रोशनी का पहाड़ पर है। रमजान की रात थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में इबादत में मशगूल थे। एक दिन फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास आए। उनका रूप देखकर आप घबरा गए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इक़रा। रसूलुल्लाह ने जवाब दिया, मा अना बिक़ारिइन। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगाया, फिर छोड़ दिया और फिर से कहा, इक़रा। यह सिलसिला 3 बार हुआ। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम सुनाया। पहली वही सूरे अल-अलक़ 9:6-5, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। यानी कि पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को अलग यानी एक जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़िए और आपका रब निहायत करम वाला है जिसने कलम से इल्म सिखाया। इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर घर लौट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा से कहा, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे उड़ाओ मुझे उड़ाओ। आपका जिस्म कांप रहा था। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने आपको तसल्ली दी और कहा, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप तो सच बोलते हैं, कमजोरों का साथ देते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। फिर वो आपको वर्का बिन नौफल के पास ले गई, जो एक बुजुर्ग थे और ज़बूर, इंजील और तौरेत जानते थे। उन्होंने तस्दीक की, यही वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर भी आई थी। आप अल्लाह के नबी बनाए गए हैं। इसी से रिसालत का सिलसिला शुरू हुआ और पूरा कुरान अगले 23 साल में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होता रहा। आखिर में हजरत खदीजा रजी अल्लाहु सबसे पहले ईमान लाईं। उन्होंने हर कदम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, जान से भी माल से भी। रसूलुल्लाह ने लोगों को तौहीद की दावत देना शुरू की, लेकिन मक्का के मुशरिकीन ने आप पर और आपके साथियों पर जुल्म व सितम का सिलसिला शुरू कर दिया। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग करते रहे। तुम सबक के लिए सब्र से काम लो, जैसे अजीम पैगंबर सब्र करते थे। सूरह अल-अहकाफ 46-35। मक्का के मुशरिकीन बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़ा दिखाने को कहते कि अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हो तो कोई ऐसा मौजज़ा दिखाइए जो हमें हैरान कर दे। उन्होंने कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो चांद को 2 हिस्सों में बांट दो। एक ऐसे मौजज़े जो ना सिर्फ इस्लाम में बल्कि दुनिया की तारीख में भी सबसे अजीम वाक़या माना जाता है, शक्के कमर यानी चांद का 2 टुकड़ों में बटना। फिर एक रात जब चांद पूरी रोशनी में था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से इशारा किया और सब लोग देखते रह गए। चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। एक टुकड़ा सफा पहाड़ की एक तरफ और दूसरा टुकड़ा मरवा पहाड़ की दूसरी तरफ चला गया। लोगों ने बिल्कुल साफ तौर पे चांद के बीच में फासला देखा। अल्लाह ने इस मौजज़े का जिक्र कुरान में भी किया। सूरह अल-कमर 5:1। इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई है और चांद फट गया है। ये आयत डायरेक्ट प्रूफ है कि ये वाक़या एक रियल मिरेकल था, न कोई इल्यूजन न जादू। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहने लगे, ये तो जादू है, शायद हमें धोखा हो गया हो। तब उन्होंने सफ़र करने वाले मुसाफिरों से पूछा जो मक्का के बाहर थे, और उन लोगों ने भी ये वाक़या कन्फर्म किया कि हाँ, हमने भी चांद 2 टुकड़ों में देखा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह से रिवायत है, हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ, एक टुकड़ा पहाड़ के पीछे और दूसरा सामने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो गवाह रहो। सही बुखारी एंड मुस्लिम। एक शाम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम मक्का में थे, वही वक्त था जब इसरा का आगाज हुआ। एक रूहानी सवारी बुराक आई, एक बिजली की रफ्तार से तेज जानवर जिसका कदम उस जगह तक जाता था जहां तक निगाह जाए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा यानी जेरूसलम तक का सफर किया। यही सफर इसरा कहलाता है, एक जमीनी सफर। मस्जिद अक्सा पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब पैगंबरों के साथ नमाज अदा की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और कई दूसरे अनबिया। ये इस बात का सबूत था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अनबिया के इमाम हैं। इसके बाद मेराज का सफर शुरू हुआ, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल को 7 आसमानों के पार ले गए। हर आसमान पर एक पैगंबर से मुलाकात हुई। पहले आसमान पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहिया अलैहिस्सलाम, तीसरे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम, पांचवे हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरातुल मुंतहा तक ले जाया गया, जहां तक कोई फरिश्ता भी नहीं जा सकता। वहां उन्होंने जन्नत के इनाम और जहन्नुम का अजाब अपनी आंखों से देखा। और फिर सबसे अजीम मौजज़ा, अल्लाह से मुलाकात। इसी मकाम पर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल को 50 नमाजों का तोहफा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर यह 5 टाइम्स हो गई, लेकिन सवाब वैसे ही 50 का रहा। ये नमाज एक ऐसा तोहफा है जो हर मुसलमान को अल्लाह से रोजाना मिलने का जरिया बनता है। यह पूरा सफर सिर्फ एक रात में हुआ। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और लोगों को बताया तो मुशरिकों ने मजाक उड़ाया, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने फौरन तस्दीक की।
अगर ये रसूल कह रहे हैं तो बिल्कुल सच कह रहे हैं। तब से उन्हें सिद्दीक कहा गया। रसूल अल्लाह ने मक्का में 13 साल तक तौहीद की दावत दी, लेकिन कुरैश के मुशरिकीन ने उन पर और उनके साथियों पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। किसी को भूखा रखा गया, किसी को पत्थर मारे गए, किसी को जलाया गया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह को गरम रेत पर लिटाया गया, लेकिन सबने ला इलाहा इल्लल्लाह का दामन नहीं छोड़ा। जब जुल्म हद से बढ़ गया तब अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब मक्का से मदीना के लिए हिजरत करो। मदीना के अंसार पहले से ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मुंतजिर थे। ये लोग ईमान ला चुके थे। या रसूल अल्लाह, आप आइए, हम आपका हर हाल में साथ देंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे करीबी सहाबा और दोस्त हजरत अबू बकर रजी अल्लाह के साथ हिजरत का मंसूबा बनाया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो हुजूर को अपनी वतन अजीज मक्का रात के अंधेरे में छोड़कर हिजरत करनी पड़ी? उस रात मुशरिकीन मक्का कुरैश ने रसूल अल्लाह को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, लेकिन अल्लाह ने उनके मंसूबे को नाकाम कर दिया। रसूल अल्लाह ने हजरत अली रजी अल्लाह को अपने बिस्तर पर सुलाकर खुद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह के साथ मदीना के लिए हिजरत कर गए। रास्ते में मुशरिकीन मक्का आप दोनों का पीछा करते हुए लारे सौर तक पहुंचे, जहां पर गार के मुंह पर मकड़ी का जाला और कबूतर का घोंसला बना हुआ था। कुरैश वहां तक आए, लेकिन कहने लगे यहां कोई नहीं हो सकता, यहां तो मकड़ी का जाला है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाह ने मुश्किल सफर के बाद 12 रबीउल अव्वल को कुबा और फिर मदीना पहुंच गए। मदीना के लोगों ने रसूलुल्लाह का इंतहाई प्यार और इज्जत से इस्तकबाल किया और ये नगमे गुनगुनाए गए, तला अल बद्रु अलैना मिन थनियतिल वदा, यानी जैसे अंधेरों में चांद रोशनी ले आता है, वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जिंदगियों में रहमत और नूर ले आए। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी, अमन, इंसाफ, भाईचारे और इंसानियत की। कुरान में फरमाया, और जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करेगा वो जमीन में बहुत जगह और रोजी पाएगा। सूरह निसा 400। जब रसूलुल्लाह मदीना पहुंच गए तो एक नई जिंदगी का आगाज हुआ। मदीना अब सिर्फ एक शहर नहीं था, ये इस्लाम का मरकज बन गया। यहां पहले से कुछ लोग मुस्लिम हो चुके थे, उन्हें अंसार कहा गया। मक्का से हिजरत करके आने वाले लोगों को मुहाजिर कहा गया। रसूल अल्लाह ने मदीना का पहला लिखा हुआ मुआहदा तैयार किया, जिसमें मुस्लिम्स, ज्यूज और दूसरे कबीले एक दूसरे के साथी थे। हर किसी को आजादी थी, लेकिन अगर मदीना पर हमला हो तो सब मिलके बचाएंगे। मदीना की इस्लामिक सोसाइटी अभी बन ही रही थी कि मक्का के मुशरिकीन ने जंग का मंसूबा बनाया। उन्हें इस्लाम का फैलना पसंद नहीं था। फिर मदनी जिंदगी में कई जंगें हुई, जिनमें बद्र, उहुद, खंदक, फहरे फिरिस्त हैं। गज़वा बद्र 2 हिजरी इस्लाम की पहली अजीम जंग जो बद्र के मैदान में हुई, जहां 313 मुसलमानों ने 1000 से ऊपर मक्कन फौज को ऐसी हार हराई कि उसकी मिसाल पूरी दुनिया में आज तक दी जाती है। पहली जंग जो मदीना के पास लड़ी गई, मुसलमान सिर्फ 313 थे, लेकिन कुरैश 1000 से ज्यादा। लेकिन अल्लाह की मदद से मुसलमान जीत गए। गज़वा उहुद 3 हिजरी कुरैश ने बदला लेने के लिए फिर से हमला किया। मुसलमान शुरू में जीत रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बावजूद पहाड़ी छोड़ दी। कुरैश ने पलटवार किया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए, लेकिन इस्लाम बचा रहा। गज़वा खंदक या अहज़ाब 5 हिजरी कुरैश ने दूसरे कबीले के लोगों को मिलाकर मदीना पर घेरा डाला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा से एक बड़ा खंदक खुदवाया। मुशरिकीन मदीना में घुस नहीं पाए। अल्लाह ने हवा और खौफ से उन्हें हराया। फतेह मक्का तारीख का वो बेमिसाल वाकया जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के साथ मक्का में दाखिल हुए। मगर हैरत की बात यह थी कि तलवारें निकली नहीं, खून बहा नहीं। जहां जुल्म था वहां इंसाफ आया, जहां दुश्मनी थी वहां माफी मिली। यही है इस्लाम का असल पैगाम, रहमत और इंसानियत। फतह मक्का मक्के का फतेह 8 हिजरी 8 हिजरी में इस्लाम की तारीख का एक अजीम मोड़ आया, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना खून बहाए मक्के को फतेह करने में कामयाब हुए। 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया नाम का अमन का मुआहदा हुआ था।
लेकिन कुरैश के हामी कबीला ने मुसलमान के साथी बनु खुजा पर हमला कर दिया, जो इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी। इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 सहाबों का लश्कर तैयार किया और मक्के की तरफ रवाना हो गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाखिल होने से पहले सबको अमन का पैगाम दिया। जो अपने घर में रहेगा उसे अमन मिलेगा, जो अबू सुफियान के घर में रहेगा उसे भी अमन मिलेगा, जो मस्जिद हराम में रहेगा उसे भी अमन मिलेगा। लोग डर के मारे घरों में छुप गए, लेकिन कोई जंग नहीं हुई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा में दाखिल होकर 360 बुतों को गिरा दिया और कहा, जाउल हक़ व ज़हक़ुल बातिल, हक आ गया और बातिल मिट गया। सूरह इसरा 1781। वो कुरैश जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म की इंतहा की थी, आज सब सर झुकाए सामने खड़े थे। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। रेफरेंस इब्ने इसहाक सीरतुन नबी। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और इंसानियत का सबसे बड़ा सबूत था। हज्जतुल विदा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज। 10 हिजरी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला और आखिरी हज अदा किया, जो हज्जतुल विदा यानी वदा हज के नाम से मशहूर हुआ। इस वक्त लाखों लोग आपके साथ थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबले रहमत यानी माउंट अराफात पर एक अजीम खुतबा दिया, जो इंसानियत के लिए एक दायमी पैगाम बन गया। सुन लो, हो सकता है कि मैं इसके बाद हज ना कर सकूं। आज सब लोग बराबर हैं। किसी अरब को अजम पर कोई फजीलत नहीं और किसी गोरे को काले पर कोई बर्ताव नहीं, सिवाय तकवा के। औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, वो अल्लाह की अमानत हैं। सूद लेना बंद कर दो, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। इसी मौके पर सूरह अल माइदा 5:3 की आयत नाजिल हुई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन पसंद किया। सहाबा ने यह सुनकर रोया, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त दुनिया से रुखसत होने का करीब है। 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी ये वो दिन था जब रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। आखिरी लम्हात आपकी जबान पर था, अस्सला अस्सला, उम्मत का ख्याल रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह के सीने से लगकर आखिरी सांस ली। सहाबा गम से टूट गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ने तो यकीन ही नहीं किया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ने सबको संभाला और कहा, जो मोहम्मद को मानता था वो जान ले कि वो वफात पा गए हैं, और जो अल्लाह को मानता है वो हमेशा जिंदा है। सूरह आले इमरान 3:144। हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ने जनाजा तैयार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी कमरे में दफन किया गया जहां वफात हुई, जो आज मस्जिद नबवी का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाते वक्त अपनी उम्मत को यह पैगाम दिया, मैं तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत। अगर तुम इन दोनों को पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। आपकी तालीम कुरान करीम व सुन्नत की रोशनी में है, जो इंसानियत के लिए मुकम्मल ज़ब्त हयात फराहम करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ईमान, इखलाक, मामलात और इबादत के हर पहलू का इहाता किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कहानी पसंद जरूर आई होगी और आप लोगों ने इसे इबरत भी हासिल की होगी। और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।